Assalamu alaikum students. Today we have to start the next topic. We have to discuss already culture and society. This is chapter number 6. Second point, we have to discuss the main components of the culture. We have the four main components of the culture. I think you have to understand about the culture. Then if you completely understand about the culture, then we have to discuss the four components of the culture that includes in the enhancing the culture. Number one, values. Second, norms. Third, institutions. And fourth one, artifacts. First of all, we discuss values. Values can be described as ideas of what seems important in life to a group of people or a society. They are ideals that guide or qualify conduct and interaction among people. They help to distinguish what is right from what is wrong and serve as a guide on how to conduct life in meaningful way. Culture is greatly influenced by values, and most often the ideas they generate are brought together in religion from which society derives its values. For example, honesty is the best policy in all the religions, while honoring one's ancestors is a value present in some religions but not in all. वी हैव टू डिस्कस द वैल्यूज़ से जैसे आपको पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ की ऐसी कदर है या ऐसी चीज़ है जो हमारे माशरे में उसका हिस्सा बन जाती है. कोई अच्छी है तो वो अच्छा काम है, बुराई है तो वो बुराई है, तो एक वैल्यूज़ बन जाती हैं कि अच्छा है, अच्छे वैल्यूज़ हैं, अखलाक है, किरदार है आपका, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, किसी की ग़ीबत नहीं करनी, या जो है वक्ती पाबंदी करनी है. तो ये तमाम ऐसी चीज़ें वो वैल्यूज़ कहलाती हैं. जैसे जो है उसको लेकर चलना जो है, जैसे ऑनेस्टी जो है, दयानतदारी जो है या अमानतदारी जो है, वो हर उसमें जो है ना मज़हब में उसको बेहतर करार दिया गया है. लेकिन इस्लाम में ऑफ कोर्स हमारे इंसेस्टर्स में से कोई भी जो है बुज़ुर्ग जो उसको लेकर चल रहा होता है तो उसकी फैमिली में बच्चे उसको कॉपी करते हैं, उसको एज अ होल फॉलो करती हैं. तो किसी भी कल्चर में वैल्यूज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं. किसी भी फैमिली में उनके फादर का जो बिहेवियर है बच्चे उसी को फॉलो करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है. तो कल्चर में मिल बैठ कर जो है वो जो वैल्यूज़ बन रही होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव में है चाहे वो नेगेटिव वे में है, उसको डिस्कस किया जाता है. नेक्स्ट है सेकंड में नॉर्म्स. नॉर्म्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट सोसाइटी कंसिडर्स एज नॉर्मल बिहेवियर. ईटिंग विद वन फिंगर इज़ considered normal behavior in South Asia but not in Europe. Each culture has methods of distinctions of making sure that people live and respect its norms. If you eat with your fingers in European city, people may look at you with disapproval, so that you may stop eating that way. Sanctions may be strict or not, depending upon the importance of the norm. Norms that a society enforces in a formal manner because it considers them important become the laws of that society. For example, drinking alcohol is legally prohibited in Pakistan. Norms mean वो ऐसी चीज़, ऐसा इक़दार, ऐसी कदर जो किसी भी माशरे का एक हिस्सा बन जाती है, वो उस कल्चर का कंपोनेंट होता है. बीइंग अ मुस्लिम कल्चर, जैसे एग्जांपल देखिए अल्कोहल है, कोई भी जो इसमें शराब जैसी कोई भी टाइप ऐसी है एडिक्ट होने वाली, वो पाकिस्तान में उसको मना किया गया. लेकिन यही चीज़ किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है ना उसको उनके नॉर्म्स में ये प्रोहिबिटेड नहीं होगी, मना नहीं होगी. तो इसी तरीके से ऐसी चीज़ें माशरे में वो फिक्स हो जाती हैं कि इस माशरे का अगर हिस्सा हम ऐसे कर रहे हैं तो वो बुरी नहीं लगेंगी. अगर उससे कोई अपोजिट काम कर रहा होता है तो वो चीज़ उसको और लगती है या ऑकवर्ड लगती है, या वो लीगली हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते या उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते. तो नॉर्म्स मीन किसी भी माशरे में रहने के ऐसे वैल्यूज़ होती हैं, ऐसे इक़दार होते हैं जिनको लेकर जो ना हम उसको अपने ऊपर तारी करके उसके ऊपर अमल करके लेकर चल रहे होते हैं. Third one is institutions are the structures of the society within which values and norms are practiced and transmitted. Some institutions are
exclusive to Indo-Pakistan Muslim society, such as mushairas. However, marriage is an institution of our society which prevails in many other societies as well. In all these societies, having a family and providing stability for them is considered an important norm. थर्ड वन डिस्कस करते हैं इंस्टीट्यूशंस. एक ऐसे इदारे, ऐसी जगह जहां आपको कल्चर्स नज़र आते हैं. फॉर एग्जांपल आप कॉलेज जा रहे हैं, आप क्लास में बैठे हैं, आप डिफरेंट टीचर से पढ़ रहे होते हैं, आपको एक इंस्टीट्यूशंस नज़र आ रहे होते हैं. अब हर टीचर अपनी फैमिली बैकग्राउंड रखता है, वहाँ से आता है. आप अपने अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं. जब मिल बैठ के पढ़ते हैं तो इंस्टीट्यूशंस से पढ़ते हैं. लेकिन वो इंस्टीट्यूशंस हमने जो पहले 2 टॉपिक्स पढ़े, वैल्यूज़ और नॉर्म से इनहराफ नहीं करेंगे. वो उससे मैचअप करके फिर इंस्टीट्यूशंस जो है मैचअप होंगे. किसी भी तालीमी इदारे का इंस्टीट्यूशंस हो गया, हम मैरिज सेरेमनीज़ में जाते हैं या डेथ सेरेमनीज़ में जाते हैं, वहाँ जो आपको सीखते हैं, जो अपने कल्चर को कर रहे होते हैं. डेथ सेरेमनीज़ हमारे अपने पाकिस्तान में देख लें, मुख्तलिफ प्रोविंस में रहने वाले लोग, मुख्तलिफ रीजन्स में रहने वाले लोगों का व्यूज़ या उनका तरीक़ाकार डिफरेंट होता है. मैरिज सेरेमनीज़ का डिफरेंट होता है. अगर एक पाकिस्तान में रहते हो डिफरेंट है, लोगों के हवाले से, उनकी इकनॉमिक वैल्यू के हवाले से, हर हिसाब से ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिससे हम लोग सीखते हैं, लर्न करते हैं कि हमारा कल्चर कहाँ से कहाँ जा रहा है या कहाँ से वेरी कर रहा है. लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस हमारी वैल्यूज़ और हमारे नॉर्म से हटकर नहीं हो सकते. नेक्स्ट इज़ वी हैव टू डिस्कस आर्ट फैक्ट्स. एन ऑब्जेक्ट सच एज अ टूल दैट वाज मेड इन द पास्ट एंड इज़ हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट. Culture is also described as the result of the best that has been thought and said in the world. In a progressive, developing and evolving culture, all achievements and accomplishments improve with time. In such a culture, improvement is given a great deal of importance, and since improvement becomes a value, people are open to listening and acting upon the views of the others. Through and respect the ideas or forces inherent in the development of the culture's artifacts, just as thought and research are reflected in scientific advancement. Those who are gorgeous, talented and calm are considered cultured, as are those who are interested in the artifacts and institutions of their own and other cultures. आर्टफैक्ट्स से मुराद के जिस इलाके में या जिस माशरे में, सोसाइटी में वैल्यूज़, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस को फॉलो किया जाता है, तो फिर उससे एक न्यू रिसर्च या न्यू कल्चर भी रिफाइन हो सकता है. तो वो आर्ट फैक्ट्स कहला रहा होता है कि जो हमारे माजी को एज अ टूल लिया जाता है, लेकिन उसको हिस्टोरिकली जो है ना वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जाती है, यानी कि उसके अंदर एडिशन किया जाता है, तो वो आर्ट फैक्ट्स कहलाता है. तो वो चीज़ें जो है ना वो लोग उसको लिसनिंग करके, उसको माजी की स्टोरीज सुनकर या उसके ऑब्जर्वेशंस को देखकर, या जैसे आजकल पिक्चर्स होती हैं, मूवीज़ बनी होती हैं, उनको देखकर जो है ना वो आर्ट फैक्ट्स के ज़रिए कल्चर को जो है ना एक नज़र से दूसरी नज़र में इन्हांस करते हैं. तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो हमने पढ़ा था मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर, कि कौन से पॉइंट्स हैं जो कल्चर्स को लेकर आगे लेकर जो है ना वो चल रहे होते हैं और उसको जो है ना इन्हांस करते हैं. तो उम्मीद है आपको ये 4 पॉइंट्स अंडरस्टैंड हो गए होंगे. ये एज अ होल कंप्लीट क्वेश्चन भी आ जाता है, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कल्चर डिस्क्राइब, या इसको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, डिफाइन द वैल्यूज़, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ नॉर्म्स एंड व्हाट इज़ द मीनिंग्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, डिफाइन द आर्ट फैक्ट्स. तो इसको हर हिसाब से इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसको काइंडली इसको क्लियर कर लीजिएगा. जो चीज़ समझ ना आई हो मुझे इनबॉक्स करें, क्वेश्चनिंग करें. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. अपने घर में रहें, सेफ़ रहें, लेकिन पढ़ते लिखते रहें ताकि नज़र आए कि आप एक पढ़ी लिखी कौम है. हमारा कल्चर ये है, हम एक मुसलमान हैं और हमारा कल्चर हमें ये कहता है कि हम तालीम से कभी भी दूर ना हों. यही हमारा मज़हब हमें सिखाता है. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.